guys, welcome back to another video, another vlog. So in this video I'll be doing a detailed review of the Royal Enfield Meteor 350 Supernova, and I'll also share with you the first ride review of this bike. So there is another video of the Royal Enfield Meteor 350 in my channel much behind, so that wasn't that informative, but this one is going to be really full of informations and stuffs which I haven't said in that video. Without wasting much of a time, let's get started. So coming directly to the heart of the machine, the engine. So this bike has an air-cooled 4-valve single-cylinder fuel inject engine that produces a max power of 20.4 PS at the rate 6100 rpm and a max torque of 27 Newton meter at the rate 4000 rpm. So now coming to the wheels of this bike has got a 19-inch alloy wheel up front and a 17-inch alloy wheel on the rear. So in front it has got a 100 by 90 section tubeless tire, and on the rear it has got 140 by 70 section tubeless tire. And coming to the brakes, it has got a 300 mm disc up front and a 270 mm disc on the rear. This bike has got dual channel ABS. So talking about the wheelbase of this bike has got a 1400 mm of wheelbase and the ground clearance is 170 mm. The seat height of this bike is 765 millimeters, which makes it accessible for both short as well as tall riders. Though I'd say the advantage is for short riders because they can you don't have to tiptoe, you can keep your feet just totally. You don't have to do like this and that. So that was just a short review of the bike, means all the specifications and stuff that you need to know. So now I'll be doing the first ride review of the bike. ये एक पहला रॉयल एनफील्ड है जो इतना स्मूथ चलता है, इतना स्मूथ, मतलब सिंगल सिलेंडर की कैटेगरी में जो रॉयल एनफील्ड है एक्सेप्ट द कॉन्टिनेंटल GT 650 एंड द इंटरसेप्टर, दिस इज द फर्स्ट रॉयल एनफील्ड व्हिच गोज सो स्मूथ मैन. मतलब पता ही नहीं चलता ये रॉयल एनफील्ड है या कोई अदर मोटरसाइकिल, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में एक सिग्नेचर साइन होता है क्या, उसका वाइब्रेशंस. अगर वाइब्स नहीं है तो रॉयल एनफील्ड नहीं है. मतलब अगर पीछे मॉडल्स पे अगर जाए, मतलब वो क्लासिक 350, थंडरबर्ड, बुलेट, तो वो सब में एकदम वाइब्रेशंस भरे पड़े हैं, और कुछ है या नहीं है इसका तो पता नहीं, पर वाइब्रेशंस बहुत सारे हैं. कंपेयर टू दोस मोटरसाइकिल, दिस बाइक हैज जस्ट जीरो वाइब्रेशंस, यू नो. मतलब फील ही नहीं पड़ता कि वाइब्स हो रहे हैं. हाँ, थोड़ा बहुत आपको फुटपैक में मिलेगा, वो देखिए अभी भी थोड़ा गियर लेवर थोड़ा हिल रहा है. हाँ, इट इज बिकॉज ऑफ द इट्स बिकॉज ऑफ द विंड, and the second is because of the little bit of vibration. It's a 350cc engine equipped motorcycle man, तो थोड़ा तो vibrations होगा ही ना. So that's okay, it's quite fine. पर इतना कम होगा इसका तो मैंने बिल्कुल भी आशा नहीं किया था. Wrong side. एकदम मक्खन जैसा ये बाइक चलता है. Seating comfort is also quite good, you know. The seats are also well cushioned, both the front seat as well as the pillion seat. You don't have to worry much for long rides. मतलब अगर दूर पे जाते हो तो आपका पिछवाड़ा दर्द नहीं करेगा बहुत देर अगर चलाते हो तो. और सामने जो विंडशील्ड आता है ना, तो ये बहुत इफेक्टिव है. It protects you from a lot of wind blast. Though you get to feel the wind, but you don't get the blast of the wind. Okay. The mirrors, finally Royal Enfield has provided some usable mirrors that you can use. Previously वो mirrors आपको कोई काम पे नहीं आता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट होता था कि पीछे से कितना व्हीकल्स आ रहा है जा रहा है तो आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता. मतलब सपोज एक व्हीकल आ रहा है तो आपको लगेगा 2-3 व्हीकल एक साथ आ रहा है, इतना वाइब्रेशन होता है. पर यहाँ ये इतना स्मूथ है तो आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि 2 बाइक्स आ रहा है. सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा. दिस बाइक हैज़ गॉट अ 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक एंड माइलेज भी अच्छा ही होगा. BS6 मॉडल है, तो you can roughly guess a mileage of around 30 to 35 in city and 35 to 40 in highways. So अगर टैंक रेंज की बात किया जाए कि एक फुल टैंक में कितना जाता है, तो अगर आप सिटी पे चलाएं तो एक टैंक पे अगर आप 300 किलोमीटर इतना तो चला ही सकते हैं, और अगर हाईवेज पे 400 किलोमीटर ऐसा कुछ. So that's not bad, you know, for a 350cc motorcycle. 300 to 400 किलोमीटर पर टैंक इज नॉट बैड. और कुछ चीज़ें अपग्रेड किया हुआ है, मतलब कंसोल में कुछ चीज़ें अपग्रेड किया हुआ है, लाइक दिस वन.
प्रीवियसली रॉयल एनफील्ड ऑलवेज हैड दैट वेरी लेस इंफॉर्मेटिव कंसोल, जिसमें सिर्फ आपका ओडोमीटर आता था, आपका स्पीडोमीटर आता था और बस कुछ नहीं। फ्यूल गेज तो छोड़ी, तो फ्यूल गेज भी नहीं आता, और यहाँ एक एमीटर रहता था, कितना अमाउंट ऑफ पावर है बैटरी में, वो सब जानने के लिए। बट इन दिस मॉडल यू गेट अ गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज मीटर, you get the speedometer, you get odometer, you get trip meter, and here you get to see the time. And this console also supports Bluetooth connectivity, so you can connect your phone with this bike, and it helps in showing you the ways. The Google Maps जो काम करता है वो सेम ही यही भी करता है, but इसमें थोड़ा छोटा दिखाता है। And one thing more, this bike also comes with a USB charger, that means you can charge your phone. एक कंप्लीटली क्रूजिंग मोटरसाइकिल है ये। हाँ, थोड़ा इसमें आप सैडलिंग नहीं कर सकते, सैडलिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि फुट पेग्स आगे की तरफ है। मतलब क्लासिक में थोड़ा बहुत हो सकता है, हिमालयन पे तो बहुत ही अच्छा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्टर एंड 650 बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मोटरसाइकिल, बट इस पे थोड़ा आपको दिक्कत होगा, मतलब हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। इट्स बेसिकली अ क्रूजिंग काइंड ऑफ ए बाइक। और जो कंफर्ट है बॉस, कंफर्ट तो एकदम अलग ही लेवल है। इसका हैंडल बार्स जो एकदम अपराइट पोजीशन पे है, तो आपको एक बिग बाइक ऐसा कुछ फीलिंग देता है, यू नो। एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड इज दैट दिस रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 कम्स इन थ्री वेरिएंट्स। सो द बेस वेरिएंट इज नोन एज द फायरबॉल, जिसमें आपको दो ही ऑप्शंस मिलता है कलर चॉइस के, दैट इज द येलो एंड रेड। द सेकंड वेरिएंट दैट इज द स्टेलर में आपको एक ब्लू कलर का एडिशन मिलता है, एकदम फुल ब्लू, डार्क ब्लू टाइप ऐसा कुछ कलर है, और आपको मैट ब्लैक एक एडिशन और एक टाइप मिलता है, कलर मिलता है। एंड द थर्ड वन दैट इज द टॉप वेरिएंट सुपरनोवा, ये जो है, तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिलता है, वन इज ब्लू, लाइट ब्लू, एंड अनदर वन इज ब्राउन और चॉकलेट कलर। सो दीज आर द थ्री वेरिएंट्स दैट रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 हैज टू ऑफर। आई जस्ट लव दिस मोटरसाइकिल मैन। टॉप स्पीड इसका क्लेम किया हुआ है अराउंड लाइक 120 समथिंग लाइक दैट बाय द कंपनी, एंड मुझे लगता है उतना ही जाता है, उतना तक ही ये बाइक जाता है, क्योंकि देखिए रॉयल एनफील्ड का बाइक तो स्पीड उठाने के नहीं है ना, तो वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है। ओवरऑल ये बाइक के बारे में बताया जाए तो एकदम परफेक्ट बाइक है, कोई भी मुझे इतना ज़्यादा फ्लॉस तो नहीं लगा इस बाइक पे। और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो अच्छा हुआ या नहीं, कैसा लगा आपको वीडियो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, सपोर्ट करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड राइड सेफ। I'll also make you hear one more thing, and that is the exhaust note of this bike. So let's hear it.